Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on dimensional analysis. In this, we are going to discuss one more application of dimensional analysis, that is to derive a given physical relation. Let's understand this application by one example. To derive a physical relation for frequency of vibrating string, if it depends upon length of the string, mass per unit length of the string, and tension T in the string. So this frequency N is dependent upon three factors: L, M, and T. These symbols are given to me. Here, M does not represent only mass. It represents mass per unit length. When I write the dimensions of M, I will be writing dimensions of mass per unit length. T is tension. Tension is the force. When I write the factors on which this frequency is dependent in combined form like this, then I have to put powers A, B, C, because I don't know whether it depends upon square or square root, whether it depends upon cube or 4 power. So we will find A, B, C. Then we can write the given physical relation after putting the values of A, B, C in this formula. When I remove this proportionality sign, I get some dimensionless constant. सबसे पहले क्या करना है, वो फैक्टर्स देखने जिन पे ये डिपेंड कर रहा है, फिर उन फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे विद प्रोपोर्शनैलिटी साइन. तब हमने हर फैक्टर के ऊपर एक एक पावर भी असाइन कर देनी है, जैसे ए बी सी. जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक डिमेंशनलेस कांस्टेंट के आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप is to write dimensions on both sides. दोनों साइड की dimensions लिखनी है. यहाँ फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 upon टाइम पीरियड. तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी? t की पावर -1. तो फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखा जाएगा? m0 l0 t की पावर -1. नाउ दिस k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो इस k को इग्नोर करेंगे. So what will be the dimension of length? L. L की power A. This is not mass M. Actually, it is mass per unit length. So dimension of M will be M upon L. M L -1. So after writing dimensions of mass per unit length, we will write the dimension of tension. Here T represent tension means force. Force is ML T -2. So whole power is C. Now next step is to combine powers of L, M and T. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, हर एक में L, M या T की पावर्स हैं. हम क्या करेंगे? सभी L की पावर्स को इकट्ठा कर देंगे, M की पावर्स को एक जगह भी इकट्ठा कर देंगे और T की पावर को एक जगह इकट्ठा कर देंगे. या मैथमेटिकल कौन सा लगेगा रूल कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते. Now here left hand side will be as it is, but on right hand side first it is written M on left hand side, so I will consider M. So this M is having power 1 and whole power is B, so total power will be B. Here it is M की power 1 in bracket, but outside bracket power is C, so 1 into C, it will be C. Because base is same, so power will be added. B plus C will be the power of M. Similarly L. L के केस में यहाँ पावर क्या है? A. यहाँ पे -1 इंटू बी -B. यहाँ पे 1 इंटू सी C. तो ये डिफरेंट पावर्स है L की, क्योंकि बेस सेम है तो सारी पावर्स कंबाइन कर देंगे विद साइन. इसी तरह से T. यहाँ सिर्फ T एक बार ही आ रहा है एंड इट्स पावर इज -2, होल पावर इज C, सो इट विल बी -2C. अब ये कंसिडर करेंगे कि जो भी रिलेशन डिराइव कर रहे हैं इट इज फिजिकली करेक्ट, सो इट विल बी डायमेंशनली करेक्ट. इसका मतलब क्या होगा? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड. अब ये रिलेशन तभी एग्जिस्ट करता है अगर m की पावर, l की पावर और t की पावर जो राइट पे है वो किसकी इक्वल हो? m, l और t की जो पावर्स लेफ्ट पे है. यहाँ पे मास की पावर क्या है? b प्लस c, सो b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0. L की पावर क्या है? A minus B plus C. It should be 0. इक्वेट कर रहे हैं हम पावर्स को ऑन बोथ साइड्स. इसकी पावर ML और T की.
-2c on right hand side, on left hand side it is -1. तो यहां से हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी which will be half. अब अगर c को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो b plus half is 0. So b will be -half. तो मेरे पास b की पावर भी आ गई और c की पावर भी आ गई. अब हम a minus b plus c में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. तो a minus b की वैल्यू कितनी है? -half. माइनस विल बी प्लस c की पावर कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? हाफ. तो c की जगह हाफ आ गई. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया? a plus 1 is 0. That means a is -1. So I have got all the powers. a is -1, b is -half, c is half. So I will put all these values in this first. इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? n equal to k, l की पावर -1, m की पावर -half, t की पावर हाफ. जितनी भी पावर नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करना पड़ेगा. वो तभी पॉसिबल है अगर ये टर्म्स डिनोमिनेटर में आ जाए. तो ये बनेगा k t की पावर हाफ इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में l हो जाएगा. जब l नीचे आएगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा. इस तरह से ये m न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये m की पावर हाफ हो जाएगा. साइन चेंज हो जाएंगे. नाउ व्हाट वी फाइंड, t and m they are having whole power half. Half means अगर इस पावर को हटाना है तो मुझे स्क्वायर रूट लगाना है. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना? k t by m होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय l. अब ये k क्या है? डिमेंशनलेस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू इस मेथड में डिटरमिन नहीं होती. ये वैल्यू हम किसी और मेथड से डिटरमिन करते हैं और इस केस में ये k की वैल्यू 1/2 होती है. अगर हमें k की वैल्यू याद है तो पुट करो, अगर नहीं याद है तो इसको k ही रहने दे. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.